मुंबई के अंधेरी में पर्यावरण की सुरक्षा पर उद्योग जगत द्वारा शिखर सम्मेलन। उद्योग जगत के दिग्गज हस्तियों की उपस्थिति में शिखर सम्मेलन का भव्य आयोजन कोहिनूर होटल में हुआ। पर्यावरण की रक्षा हेतु ग्रीन एनर्जी के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए सभी लोग एकजुट होकर मंच साझा किए। यह अभूतपूर्व सभा आईआईटी मद्रास, आईजीबीसी मुंबई चैप्टर, मटीरियल रिसाइक्लिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एमआरएआई, इंडियन पॉल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन, आईपीसीए और एएनडी सस्टेनेबिलिटी के उद्योग विशेषज्ञ भारत के लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली मिशन को आगे बढ़ाने और यूनाइटेड का समर्थन करने के लिए एक बड़ा प्रयास शुरू किया है। Thank you. I'm Anuradha Ganesh and I'm a adjunct faculty at IIT Madras, the School of Sustainability. And this workshop is sort of a culmination of an initiative which was taken about 6 months before, wherein the faculty under the Energy Consortium and School of Sustainability, we all discussed and realized that there are a lot of this regulation which has come up from the SEBI on ESG reporting, that is the environment, social and governance reporting by the industries. Now it's getting mandatory for the first top 150, then 250, then 1000, and that is something which is very, very important to ensure that sustainability is practiced by the industries. My name is Viren Gora. I'm an alumnus of IIT Madras. I've worked in industry for more than 3 decades, and in the last few years I've worked on water security in more than 175 villages in Kutch area. So most of the work that I did focused on rural solutions related to water. We looked at the demand side for water, we looked at the supply side for water, looked at what interventions we can offer to the villagers, and then worked with people to find mutually acceptable solutions, raised funds from various sources, and actually implemented solutions on the ground. As we speak today, we have also constructed additional classrooms in one of the villages in Kutch. That's broadly what I did, but in my previous avatar, I was also head of sustainability for a corporate in the past, and we looked at multiple initiatives with regard to energy efficiency, renewable energy, green building, waste, packaging, and a host of other issues related to sustainability. Or Energy Consortium at IIT Madras. The Energy Consortium is an industry, academic and government collaborative effort. We are basically trying to see how we can accelerate net zero, how we can translate technologies from IIT Madras point of view faster to industry, and therefore help decarbonize. Our main goal is how can we help towards the renewable energy goal for the country, which as we know is 500 megawatts of renewables. How we can accelerate those technologies, be scaled up, and which can also be cost effective, and therefore help a lot of our mining sector, cement sector and steel sector industry. So I lead a consortium of 11 industry partners. These are global industry majors, and all have their own targets for net zero, which may be 2050, some of them longer with 2070. As we think of energy, one of the core areas for us is also how to make new technologies sustainable. That's how we are plugged into the Sustainability Summit. We want to make sure that energy technologies of the future are sustainable. They don't have extra carbon dioxide emission footprint of their own, and so we are not just moving from one technology to other and still having the same problem. So I am a knowledge partner in capacity as Energy Consortium CEO to the Sustainability Summit. We are looking forward to engaging not just major sectors and industries, but also to engage different stakeholders, which may be smaller industries, which may be the civil society. We are trying to engage on a community level. Just as we had today, we are also engaging closely with the regulators. नमस्कार, मैं डॉक्टर माला सिंह, एडवाइजरी बोर्ड मेंबर, पॉल्यूशन कंट्रोल इंडिया एंड ऑल्सो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर CSO ग्लोबल एंड CII IGBC चेयरपर्सन मुंबई। सो मैं ये आज के प्रोग्राम में कहना चाहूँगी कि आज के प्रोग्राम में जिस भी संदर्भ पे बात हुई है, जो कि ESG, एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट था, विषय था सबके लिए, सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, जो कि आज के दिन में बहुत बड़ी जिसकी ज़रूरत है। पर्यावरण जिस तरह से आप देख रहे हैं, जिस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो ये सारे इश्यूज़ को टैकल करने के लिए कि किस तरह के सॉल्यूशन, जैसे कि ग्रीन एनर्जी, जैसे ग्रीन बिल्डिंग्स, किस तरह के सॉल्यूशंस हम मार्केट में लाएं, और ये सारी प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए सारे जितने कॉरपोरेट्स हैं, MSMEs हैं, या आम आदमी की हम बात करें, तो सबको साथ में चलते हुए ये अच्छी प्रैक्टिसेस, जो गुड प्रैक्टिसेस
जिससे हम अपने पर्यावरण को सही संतुलन में लाने के लिए सहयोग कर सकें, ऊर्जा बचा सकें, पानी बचा सकें और अपना जो भी वेस्ट से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, कितना सारा कचरा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं शहरों में, तो हम घर से ही उसको कैसे रिड्यूस करें, कैसे मिनिमाइज़ करें, कैसे रिसाइकल रीयूज़ करें। और जो भी हमारे पुराने एंसेस्टर्स ने जो हमें वैल्यूज़ दी थी कि किस तरह से प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, और हमारे तो भारतीय माइथोलॉजी में हम लोग उनकी इज्जत करते आए हैं, रिस्पेक्ट करते आए हैं। तो आइडिया वही है आज के प्रोग्राम में कि हमारी जो पुरानी हेरिटेज वैल्यूज़ हैं, जो कि हमने अपने पुराने पूर्वजों से सीखी है, उनको हम फिर से किस तरह से बैक वही कॉन्सेप्ट्स को हम अपनी लाइफ में लाएं, अपनी ज़िंदगी में लाएं और एक इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल को आगे हम एनकरेज करें, लोगों को प्रेरणा दें और खुद भी प्रेरणा बने। एज एन इंडिविजुअल एक अलग मैं इंसान हूँ तब भी मैं करूँ, एक कंपनी हूँ तो भी करूँ, और सबको जागरूक भी करूँ और खुद भी करूँ। यही मेरा मैसेज है। बात करें ग्रीन एनर्जी की और कार्बन एनर्जी, कितना इसमें कॉस्ट का डिफरेंट होता है, जरा उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ग्रीन एनर्जी और कार्बन थोड़ा सा ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। ग्रीन एनर्जी की जो हम बात कर रहे हैं, एक बहुत सिंपल साधारण भाषा में ग्रीन एनर्जी का ये मतलब है कि जो भी ऊर्जा का स्रोत है, आपका जो माध्यम है, वो आप एक उसका पॉल्यूशन और प्रदूषण के ऊपर दुष्प्रभाव नहीं हो रहा है जब वो एनर्जी फैक्ट्री में बनती है। उसका जो सोर्स है वो क्लीन है, मतलब वो प्रदूषण नहीं करता है। जैसे कि आपकी सौर ऊर्जा है, विंड एनर्जी है, फिर अभी बायो एनर्जी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, आपका ग्रीन हाइड्रोजन आ रहा है। सो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब हमको ये प्रेरित करते हैं कि हमें ऐसी ऊर्जा का इस्तेमाल करना है जिससे कि दुष्प्रभाव न पड़े पर्यावरण पे, ना तो पॉल्यूशन हो, ना प्रदूषण बढ़े, और उल्टा ताकि हमें सांस भी लेनी है ना शहरों में। अगर हम प्रदूषण को बढ़ाते जाएंगे, कोल से बेस्ड जो एनर्जी है, जो पावर हम कोल बेस्ड यूज़ करते हैं अभी, वो वाले संसाधनों के ऊपर जो हमारी निर्भरता है, हम उसको कम कैसे करें। आइडिया वही है ESG के और इस प्रोग्राम के माध्यम से कि किस तरह से हम ये जो कार्बन उत्सर्जन जो हो रहा है उसको कम करने के लिए फ्यूल कंजम्पशन को कम कैसे किया जाए, और किस तरह से हम प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो सोर्स है ऊर्जा का वो क्लीन हो, ग्रीन हो, वो ज़्यादा ज़रूरत है आज की डेट में। और कॉस्ट की अगर आपने जो बात की, अभी आज की डेट में मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी सोलर एनर्जी का जैसे मैं उदाहरण लूँ तो अभी कॉस्ट बहुत कम हो चुकी है। अगर आप देखें कि जितना आप उससे बचा पाते हैं 1 महीने में या 6 महीने के अंदर, वो वैल्यू आपको इतना दे जाती है रिटर्न बाद में कि एक तो आपको सबसे अच्छा लगेगा कि आप एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहे हो और पर्यावरण को दुष्प्रभाव नहीं डाल रहे हो। दूसरा, आप ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो, ऐसी जगह पैसा लगा रहे हो जो कि आपका सारी कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल है। तो कॉस्ट ऑलरेडी गवर्नमेंट ने सब्सिडी के भी प्रावधान किए हैं, 40% सब्सिडी मिलती है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में, एग्री बिजनेस में। बहुत सारी अच्छी पॉलिसीज़ भी लाए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर की, बहुत सारी योजनाएं हैं, पंचामृत है, बहुत सारी योजनाएं हैं जो सबको अच्छा, मैं कहूँगी कि अगर लोग आगे आएँ और इस तरह की ग्रीन एनर्जी, ग्रीन बिल्डिंग्स, इस तरह की प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, तो मुझे लगता है कि हम सब मिलके नेट ज़ीरो मिशन को भी अचीव कर सकते हैं और हम सब एक अच्छा वातावरण आने वाले बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि धरती तो एक ही है, कोई प्लेनेट बी नहीं है। तो धरती डायनासोर के बिना भी रहेगी, इंसान के बिना भी, लेकिन हम धरती के बिना नहीं रह सकते। तो ये तो हमें सोचना है कि हमारी कितनी जिम्मेदारी है एक जिम्मेदार नागरिक की तरह। तो अब ये सिर्फ इसको कंप्लाइंस मत समझिए, इसको एक जिम्मेदारी के रूप में समझिए। सो कंप्लाइंस वाला शब्द अभी गया, अब ये क्लाइमेट इमरजेंसी की बात है। So my name is Ganesh Chari. I'm a founder and MD of Neshajo Envirotech, based out of Bengaluru. So today we have come here and main agenda being ESG and its reporting and compliances, especially in the time when we are facing major crises in climate like flooding, landslides. Main reason behind it that we are developing our industries but not taking sufficient care of our environment, and these initiatives will help us to frame a guidelines and make a policy related to ESGs more effective and impacting the environment in a positive way in coming years.